Hello, my dear students. You all are welcome at Alka Education Vlogs. I hope you all will be doing well. In last two videos, I have discussed with you meaning and definition of constitution and why do we need a constitution. In this video, I am going to discuss with you how Indian constitution was made. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं. Let's start from 1939. As you are well aware that Second World War had started in 1939 and Britain had taken part in this. और उन्होंने ज़बरदस्ती क्या किया, इंडिया को भी इस वॉर में शामिल कर लिया. जो इंडियंस हैं उनको ज़बरदस्ती रिक्रूटेड इन द आर्मी एंड इंडियंस हैड बीन डिप्यूटेड ऑल ओवर द यूरोप टू टेक पार्ट इन दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दो इंडियन लीडर्स हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड टू पैसिफाई, इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड टू कमीशन. फर्स्ट वाज द ऑगस्ट प्लान एंड सेकंड वाज द क्रिप्स मिशन. बट इंडियन लीडर्स एंड इंडियन पीपल दे हैड डिनाइड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल्स, क्योंकि जो भी इन दोनों कमीशंस के प्रपोजल थे दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इंडियंस. फाइनली इन 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड एंड आपको मालूम है कि ब्रिटेन हैड गॉट अ बिग फाइनेंशियल सेटबैक. बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक हुआ था. सो नाउ इट हैड बिकम very difficult for the Britishers to take control over India. So finally they had decided that independence would be given to India. But they said कि independence देने के लिए क्या करना होगा, पावर ट्रांसफर करने के लिए इंडिया के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. So finally, for this task, one plan had been introduced and that was the Cabinet Mission Plan. This Cabinet Mission Plan was introduced in 1946 and there were 3 members. इस मिशन में 3 मेंबर थे. स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले भी क्रिप्स मिशन के मेंबर रह चुके थे, A.V. Alexander and Patrick Lawrence. और ये this was for the first time when Indians had been given this freedom that they can make their own decisions, they can decide themselves कि constitution कैसे बनाया जाएगा. So the main aim of this cabinet mission plan was the formation of a constituent assembly. अब question is, what was the constituent assembly? क्या थी? Constituent assembly was basically an assembly which have the elected members which were elected by Indian people and those who had been given the task of making of Indian constitution. पूरे तरीके से इंडियन लोगों ने ही डिसाइड किया था कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी. So for the formation of this constituent assembly, it had been decided that there will be 389 members. इसमें 389 members होंगे and वो members कहाँ से आएंगे, किस तरीके से चूज किए जाएंगे, it also had been decided only Indians. So first of all, the British regions, the region which were under the control of Britishers, it had been decided that 292 members would be chosen from these regions and then British commissioners, यहाँ से डिसाइड किया गया कि 4 मेंबर चुने जाएंगे जिसमें आपका असम, बिहार, बॉम्बे ये सब आते थे. एंड आपका थर्ड जो था, these were princely states, these were the regions which were under the or which were ruled by the kings. जहाँ पर किंग रूल कर रहे थे वहाँ से डिसाइड किया गया कि 93 मेंबर्स वहाँ से नॉमिनेट किए जाएंगे या इलेक्ट किए जाएंगे. They had been given full freedom. प्रिंसली स्टेट्स को पूरी फ्रीडम दी गई थी. इफ दे वुड बी विलिंग दे कुड कंडक्ट इलेक्शंस एंड इफ नॉट दे कुड नॉमिनेट द मेंबर्स एज वेल. अगर वो चाहें तो इलेक्शन कराएं और अगर नहीं चाहें तो वो इन मेंबर्स को नॉमिनेट भी कर सकते थे. सो टोटल इन ऑल 292 प्लस 4 प्लस 93 389. तो 389 मेंबर्स जो हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे. इलेक्शंस फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड स्टार्टेड इन 1946 पे ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए इलेक्शंस हुए. The basis of this election was the communal electorate and there were 3 major communities who had taken part in this election. First were the Sikh, then second the Muslims and third Hindus and others. तो 3 communities थी जिन्होंने इस constituent assembly के elections में हिस्सा लिया. But no direct elections had been taken place. कोई direct election नहीं हुआ इस assembly के लिए. The members of this constituent assembly had been elected indirectly. कैसे choose किए गए थे? आप ऐसे समझिए, the way at present राज्यसभा members are elected. जैसे आपके राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चूज करता है? स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं. तो पीपल आर टेकिंग पार्ट इनडायरेक्टली इन चूजिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. वैसे ही जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, लोगों ने जो है वो इन मेंबर्स को नहीं चूज किया. उन्होंने जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, दे हैड वोटेड टू elect the members of constituent assembly.
एंड इट हैड बीन डिसाइडेड कि एवरी 10 लाख पीपल, हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक कैंडिडेट चूज किया जाएगा. सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस तरीके से इलेक्शन होता है. नाउ आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पर जो नोट्स लिखे हैं, इफ यू आर विलिंग यू कैन राइट इट डाउन, आप उन्हें लिख सकते हैं. इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई विल डिस्कस विद यू, मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या फीचर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन था, दिस ऑल आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल. Now, in the second segment of this video, we will study about the Constituent Assembly. First segment में अभी हमने किया कि किस तरीके से आपकी Constituent Assembly का election होता है. All total 389 members हैं, those who had been chosen for the Constituent Assembly. अब इनका इलेक्शन हो जाने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है. एंड दिस फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946, जिसका एम होता है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करना. एंड सबकी आम सहमति से जो है इस असेंबली में जो सीनियर मोस्ट लीडर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, he had been appointed as the president of the constituent assembly. But here you will remember one thing, though he was the first president of the constituent assembly, but he was a temporary president. वो temporary president थे. इसके बाद सेकेंड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एंड दिस मीटिंग टुक प्लेस ऑन 11 दिसंबर 1946. द एम ऑफ दिस मीटिंग वाज टू अपॉइंट और टू इलेक्ट अ परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड इलेक्शंस के बाद लोगों की चॉइस के बेसिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he had been appointed as the permanent president of the constituent assembly. Now, the next or the third meeting of this Constituent Assembly took place on 13 December 1946, and the purpose of this meeting was to introduce the objective resolution. This resolution had been introduced by Pandit Jawaharlal Nehru. क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या पर्पस होगा, क्यों बनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी. सो the main objectives of this objective resolution was India as an independent sovereign republic. It means India एक independent sovereign republic होगा. Sovereign means any country which is independent in taking its decisions externally or internally. जहाँ आप किसी के internal या external control में नहीं होते हैं. तो ऐसे ही आप देखते हैं कि इंडिया internally और externally independent है. इंडिया को किसी से किसी भी तरह के प्रेशर में अपने डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया एक रिपब्लिक है. आपको मालूम है, there is a head of the state in India and he is not hereditary. He is chosen by the people. President of India, he is the head of the state and लोग उनको चूज करते हैं. सेकेंड चीज़ जो कही गई वो ये थी कि पीपल जो है दे वुड बी द सोर्स ऑफ पावर. इंडिया में सारी पावर जो है वो किसके पास है? लोगों के पास है. इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं ये किस तरीके से बनेंगे, ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, इन सब के लिए जो पावर है, इस सोर्स ऑफ पावर कौन है? ये लोगों से आती है. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स. ये डिसाइड किया गया कि सभी इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स इक्वली प्रोवाइड किए जाएंगे. हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दे वुड बी गिवन इक्वल स्टेटस, सबको प्रोवाइड किया जाएगा. एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, फेथ, एवरीथिंग वुड बी गिवन टू, सबको इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा. Apart from that, it also had been decided that India would be a union of states. India एक union of states होगा and India का एक written constitution होगा. And because of all these such details, हर छोटी से बड़ी डिटेल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. That's why you can see Indian constitution is very comprehensive. बहुत डिटेल है, हर तरह की चीज़ें क्योंकि इसमें लिखी गई हैं. तो द मेन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का अभी कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिखा नहीं गया है. उससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, डिसाइड कर लेना था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रखनी हैं. इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू होता है. बट द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट विलिंग टू डू दिस वर्क. वो ये काम नहीं करना चाहते थे. द रीज़न बिहाइंड दैट वाज, उनका कहना था कि उन्हें अपने लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए, वो इंडिया के साथ नहीं रह सकते हैं. दे सेड कि दो कॉन्स्टिट्यूशन बनने चाहिए, वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पाकिस्तान एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. एंड द मुस्लिम मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग, दे वुड बी विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन. सो on the demand of the Muslim League,
Finally, the Lord Mountbatten, the Viceroy of India, he had passed one act which had been given the name Independence of India Act in 1947, and इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं कि अब इंडिया जो है उसको पार्टीशन कर दिया जाएगा, इंडिया वुड बी डिवाइडेड, इंडिया का डिवीजन हो जाएगा, एंड फाइनली according to this announcement the partition of India had been declared on 14th August 1947. तो 14th August 1947 को आपका पाकिस्तान बन जाता है, एंड मिडनाइट में 15th अगस्त 1947 को आपका इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद हम इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, तो हम आज़ाद होंगे, हमें अपना एक नेशनल फ्लैग चाहिए होगा। सो फाइनली 22 जुलाई 1947 को इंडिया का एक नेशनल फ्लैग, जिसे अभी हम तिरंगा ट्राइकलर फ्लैग कहते हैं, दिस फ्लैग हैड बीन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस फ्लैग को अडॉप्ट कर लेती है। नाउ वी विल मूव टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, and now we will study some facts about the drafting committee of the constituent assembly, but before doing that we will remember one thing। अभी मैंने पिछले सेगमेंट में आपके साथ डिस्कस किया कि इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, and after the partition some of the members of this constituent assembly had left for Pakistan, so we'll see that detail once again। In constituent assembly, you know, there were total over in all 389 members, out of which 90 had left for the Pakistan and 299 left in India। So now no fresh elections had been conducted for these members, and these leftover members only done the task of making of Indian constitution। Now about the drafting committee, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 29 अगस्त 1947 को बनाई जाती है, एंड दिस कमेटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या चीजें उसमें रखी जाएंगी, ऑल डिटेल हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय दिस कमेटी ओनली। The chairperson of this committee was Dr. B.R. Ambedkar. That's why he is being called as the father of the Indian Constitution and the architect of the Indian Constitution। Now, this drafting committee क्या करती है? Drafting committee ने constitution का जो draft बनाना है वो बनाना शुरू कर दिया, and finally the first draft of this constitution had been prepared and it was presented in front of the Constituent Assembly in February 1948। और इसके बाद 3 रीडिंग्स होती हैं, 3 रीडिंग्स के बाद फिर 3 ड्राफ्ट बनाई जाती हैं, एंड फाइनल आफ्टर अ ग्रेट मैथ और आफ्टर अ ग्रेट डिबेट एंड डिस्कशन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रेडी ऑन 26 नवंबर 1949 को प्रिपेयर होता है, एंड दिस ड्राफ्ट हैड बीन अडॉप्टेड ऑन द सेम डे, इट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। One more important thing, on 24th January 1950 the national anthem Jana Gana Mana had been accepted by the Constituent Assembly of India, and Dr. Rajendra Prasad had been elected as the President of India, who was working since date as the President of the Constituent Assembly। Now, after signing the final draft of the Constitution by the Constituent Assembly, the Constitution came into practice on 26 January 1950. So, there is a question, is there any specific reason to adopt the Constitution or to bring the Constitution in practice on 26 January only? Yes, there is very strong reason behind that. Actually, in Congress session of 1929, it was Lahore session, it was decided by the Congress that on every 26 January, it means upcoming 1930 से हर 26 जनवरी को will be observed as the Independence Day की फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाएगा जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। So, to give importance, to give respect to this historical date, our constitution had come into practice on 26 January 1950. This day is observed in India as Republic Day। That's all for today। I hope आज की वीडियो में जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। In the upcoming video, I will explain you the sources of Indian Constitution and its philosophy। Thanks for watching this video। Please don't forget to like and subscribe this channel। Till then, take care, study well, and please don't forget to write your comments।